I'm feeling guided to ask one more question, guys. That what was his spiritual connect with the experience of working in the movie Kedarnath? Because it has, we know कि उनका काफी एक spiritual experience और एक spiritually the movie had connected very deeply with him. So this is what I will find out. So. The spiritual connect experience of Sushant working in Kedarnath. Okay, we are checking at this. Ace of Sword in reverse. Wow, Sun card. Beautiful, beautiful. I mean, this is the crescendo, right? Crescendo. Wow. King of Cups in reverse. And then you have Ace of Pentacle hai or Magician hai. What is this? Ace of Sword in reverse. Ace of Sword in reverse. The spiritual connect यहाँ पे देखिए एक dove जो होता है एक peace का symbol होता है. You have a dove card here. यहाँ पे dove है. The bird which is a symbol of spirituality and peace and love and high vibration bird है. तो वो चीज़ आ गया है. तो ऐसा लगता है कि the working on the movie Kedarnath was definitely eye opener for him. Ace of Sword in उल्टा आया है, यानी कि it was a kind of काफी there are a lot of skies here और grey sky है और यहाँ पे clear sky है. It's more like it was kind of a lightning, a bolt of lightning. Working on the movie was like a bolt of lightning that smashed through his whole being and what all he knew about things. क्योंकि ये बंदा काफ़ी पढ़ने लिखने वाला आदमी है, काफ़ी ब्रेन में रहता है मतलब कि he uses his mind power a lot, he thinks a lot, he writes a lot, right? और ये movie, it was unlike anything he had ever experienced. It was like a bolt that sliced through his knowing and brought so many things to his understanding, if you understand what I mean. जितना भी एक बादल आप देख रहे हो उसके पियर्स करके एक क्लैरिटी नहीं है, एक हेजी है. We go through the turmoils and the cloudiness of the physical world, but the experience took him to the, आप बोल सकते हो, seventh heaven. The experience elevated him. जितना भी इससे एक डाउनलोड हुआ ना, स्पिरिचुअल डाउनलोड आप बोल सकते हो कि हो रहा है, वो बिल्कुल एक दूसरे, उनका जितना भी मिथ था एक वो सब छट गए और काफी क्लैरिटी उनको अपने आप में, एक लाइफ के बारे में वो चीज मिला है. दैट इज द स्पिरिचुअल कनेक्ट ही हैज, एंड इट ब्रॉट हिम लॉट ऑफ पीस एंड सेरेनिटी, एंड I also get that it got him a lot of freedom from the material world, freedom from the Pentacles energy. Ace of Pentacle याद रखिए कि वहाँ पे जब उन्होंने अपना बॉलीवुड का करियर स्टार्ट किया था तो he was very excited and in scattered energy and to jump on this Ace of Pentacles का energy, right? Ace of Pentacles पे jump करने का उनको काफ़ी repercussions हुआ, उनकी रिलेशनशिप टूट गई, लोगों ने उनको मिसगाइड किया और फाइनली तो जो हुआ हम जानते ही हैं. तो एक होता है ना कि जैसे कि एक थोड़ा सा ज्ञान जैसा मिल गया है, थोड़े से स्पिरिचुअल हो गए हैं एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो इट रियली अनकवर्ड द टिंसल टाउन का जो एक
एक मैजिक होता है ना, मैजिशियन, एक टिंसल टाउन का जो मैजिक होता है उसमें काफी एक स्पिरिचुअल इंसाइट्स उनको मिला. इट हेल्प हिम गेट ग्राउंडेड. ऑलराइट. तो ये चीज़ है. उसके बाद ये सारा तो स्पिरिचुअल लेवल पे हुआ. यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा है कि दिस इज ब्यूटिफुल कि सन आया है. एंड अगेन आई थिंक दिस डेक इज रियली रेजोनेटिंग विथ द केदारनाथ रीडिंग, बिकॉज आप कार्ड्स को देख सकते हो कि कैसे एक एक इमेज, द इमेजेस आर टॉकिंग. यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक जो हम रुद्र बोलते हैं, शिवा को रुद्र बोलते हैं, और उनके लिंग को हम लोग काफी एक एटम से कंपेयर किया जाता है. एंड हाउ इट इज सो पावरफुल एंड इट्स सो ओवर दैट्स एनर्जी एंड ऑल दोस थिंग. तो वही वाला एनर्जी बर्स्ट हो रहा है यहाँ पे. एंड आई गेट अ फीलिंग दैट ही इज टॉकिंग अबाउट ही गॉट कनेक्टेड विथ ये पूरा. देखिए ये सारा सोलर सिस्टम है, एंड दिस इज द सन हियर एंड ऑल द प्लैनेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सो आई थिंक दिस मूवी got him connected to more of astronomy. This person was already very much interested in the astronomy, the planets and the Jupiter rings and the Jupiter bands and the Saturn rings and stuffs. And this was the experience of it is more like bringing spirituality to science. Yes, that is what I'm getting. This guy was a very scientific guy, right? And this movie was, जैसा मैंने आपको बोला कि काफी सारे उनको ऐसा लगता होगा कि साइंस सेपरेट होता है और स्पिरिचुअलिटी अलग होता है. बट दिस मूवी वाज अ आई ओपनर. it was the myths were getting smashed off and new clarity was coming into his life, and he was like, no, science and spirituality is the same thing. And this is what I talked in my 3-4 वीडियो पहले, जब मैं एक क्वेश्चन को आंसर कर रही थी न्यूमरोलॉजी को रिलेटेड. तो मैंने आपको बताया कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओगे, तो उस वीडियो में मैंने ये बात की थी कि हाउ साइंस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. इनिशियली आपको लगता है कि yes, science and spirituality is like this, but once you start exploring spirituality, you will find that science is all that जो भी साइंस है, it is that part of a spirituality that we have understood, and that which we have still not understood, which science has still not understood, is still continues to be very mystical and secretive, hidden in the womb of the universe, hidden in the ब्लैक होल आप बोल सकते हो. तो बात ये है कि यहाँ पे बहुत इंसाइट आया है, बहुत लर्निंग और अनलर्निंग हुआ है उनका. एक पीस भी मिला है और काले बादल छट गए हैं. एक ग्राउंडिंग भी मिला है उनको, जो कैरिड अवे हो गए थे वो मूवीज के बाद. यहाँ पे देखिए वो बिल्कुल एक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन उनको फील हो रहा है. ही हैज गॉट टू फील दैट थिंग. और ब्रह्मांड का ये पूरा है ये. एंड देन अगेन यू हैव व्हाट, King of Cups in reverse. King of Cups in reverse. King of Cups in reverse. What does that even mean, King of Cups in reverse? Okay, so अब यहाँ पे बोल सकते हो कि ये काफी एक उनके दिस एक्सपीरियंस वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट. इट वाज लाइक क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल बैक ऑफ द डेक में है और यहाँ पे एस ऑफ कप है. आप कह सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा ग्राउंडिंग उनको मिला था लाइफ में, वेयर जो कि काफी एक नाइट ऑफ वॉन्स के अपोजिट एनर्जी में वो काफी बहते चले जा रहे थे. हिज एनर्जी वाज वेरी स्कैटर्ड. वहां पे थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो कि ही वाज एबल टू फाइंड हिज एंकर, by finding something very close to his heart. and मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी एक थर्ड आई चक्रा का भी अवेकनिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पे. तो जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि एक न्यू नॉलेज, एक न्यू इंसाइट kind of blitzkrieg through him, and he was like, wow, this is beautiful. I never knew this, that science and spirituality is the same thing, and that kind of a thing. तो यहाँ पे देखिए ग्राउंडिंग मिला है पेंटिकल्स को, और यहाँ पे एक थर्ड आई का भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफी एक अवेकनिंग जैसा भी फील हो रहा है. काफी स्पिरिचुअलिटी के करीब आ गए थे इस मूवी से. और एंड एस्ट्रोनॉमी से भी काफी क्लोज आ गए थे. ही वॉज मोर, दिस मूवी
working in this movie took him closer to the skies and the planets and the solar system and all that. And it brought a sunlight in his life. यहाँ पे देखिए काफी ग्रे स्टार्स. अगर आप देखो कि उस मूवी में काम करने के पहले उनकी काफी उनका इमेज खराब हो गया था, राब्ता में उनको काफी मूवी भी हिट नहीं हुई थी, एंड ही वाज आल्सो गेटिंग अ वेरी नेगेटिव पब्लिसिटी. तो यहाँ पे ग्रे स्काई उसी चीज को बता रहा है कि ही वॉज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन ही चोज दिस मूवी, ग्रे स्काईज. तो वहां पे उनको एक एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिला है इस मूवी से, जो कि राब्ता के बाद, नेगेटिविटी के बाद काफी अपने दिमाग में रहते होंगे और डिप्रेस नहीं, मतलब कि ही वुड बी सैड एंड थिंकिंग ऑन थिंग्स. तो यहाँ पे उनको एक काफी क्लैरिटी मिल रही है इस मूवी से काम करने के बाद, एक सनलाइट आया है उनके लाइफ में. तो दिस मूवी हेल्प हिम गेट बैक इनटू हिज वॉर्टेक्स ऑफ लव, ऐसा लग रहा है. All right, so this is the guidance, guys, for what is the relation of this movie with him. Now I will check one message for Sushant's Warriors, what he feels about Sushant's Warriors. Okay.